Today we will be doing the topic of indices. It's a very important topic and it's connected with various topics. Yeah. Foremost जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस के अंदर सर्च का, उसके अंदर तो ये है, अगर आपको इंडेक्स के रूल्स पता है तो सर्च आपके लिए इजी है, वरना मुश्किल है। अब इंडेक्सेस के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट इज एन इंडेक्स. So if I write a number a to the power n, this a is base and this n is my index. ठीक है, इंडेक्स को कहते हैं पावर और या एक्सपोनेंट, ये इसके नाम है. लाइक आई कैन राइट द पावर एज इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट. या एक्सपोनेंट. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 2 to the power 3, तो 2 इज माई बेस, 3 इज माई इंडेक्स. अगर मुझे रूल्स को याद करना है इनके, तो मुझे पता होना चाहिए इंडेक्सेस में व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट इज माय इंडेक्स. अच्छा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 to the power 4, ये मेरी बेस है और ये मेरा इंडेक्स है. ठीक है, ये मेरा इंडेक्स है. ओके, so I should know what is a base and what is my index in order to memorize the rules of indices. सही है. अगर मैं एक और लिख दूँ 10 to the power 2, this is my base and this is my index. Okay. So if I know what is my base and what is my index, then I can move forward in the rules base. अब होता क्या? The rules of indices. The rules of indices are applicable when the multiply and divide sign in between the bases. This is only applicable when we have a multiplication and a division sign in between numbers. So, first rule says, rule number 1, a to the power n into a to the power n will always be, when we have bases same and there's a multiplication sign in between, when we have bases same and we have a multiplication sign in between, so the answer will always be a to the power of addition of the power. We will add the powers up. So whenever in an indices equation we have a multiply sign between the or bases same hai, we will add the powers up. Rule number 2, a to the power m divided by a to the power n. If we have bases same and we have a division sign in between, we will subtract the power up. A to the power m minus n. A to the power m minus n. जब भी मेरे पास दो बेसिस ऐसी हैं सेम है and there's a division sign between, we will subtract the powers. कहाँ क्लियर है? These first two rules are applicable when we have same bases. When we have same bases, we will apply this rule. चलिए इसे कॉपी करो, फिर मैं आगे समझाता हूँ. Done. First I'll explain all the rules, then मैं इसकी application समझाऊंगा एक एक करके. Okay. Third rule says a to the power n, sorry, into b to the power n. Now the issue is, Ali, we don't have same bases over here.
We don't have same bases over here, Parisa. So now when we don't have same bases, do we have power same? Yes, now we have in this scenario, we have two power same, m and n. In this case, when we don't have bases same but we have power same, we can multiply the bases together. इसको कैसे लिखेंगे? ab the power whole n. ab to the power whole n. Number 4, if we have bases which are not same and we have same power with a division sign in between. अब यहाँ पे हाजिरा क्या हो रहा है? दो numbers उनकी bases same नहीं है, but the powers are same. I can divide them out. A upon b the power of n. पहला वाला नंबर न्यूमरेटर में जाएगा, दूसरा वाला नंबर डिनोमिनेटर जाएगा और पावर कॉमन निकल जाएगी. ये जो दूसरे रूल हैं, दो रूल हैं, ये होंगे सेम पावर रूल. जल्दी से लिख लो ये. तो रईसा जल्दी से लिखो फिर मुझे बताओ. But these are the first 4 rules that are applicable in multiplication and division. Same base है, multiply है, power add. Same base है, divide, power minus. Bases different, power same, multiply है तो दोनों को power multiply कर दो base को. अगर bases same नहीं है, power same है, विषय division है, so we can divide the bases together. Are you done? Parisha done? Taha done? चलें. फिफ्थ रूल ये कहता है if a power inside and a power outside the bracket, these two power will multiply out. A to the power mn. These two power will be multiplied out. These two power will be multiplied out. लिख लिया सबने? तो मैं एक साथ इसके रूल्स बता दो, साथ एप्लीकेशन भी करा दो. डन? अली डन? चलो नाउ विल डू द एप्लीकेशन. पहले 5 रूल हैं, इसके अगले भी रूल हैं, पहले 5 पे फोकस करते हैं. एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स. उसने बोला पहले कौन से रूल में बात कर रहा हूँ? पहले मैं रूल बात कर रहा हूँ a to the power m into a to the power n equals to a की पावर m plus n. और दूसरा रूल जो मैं इसे फोकस कर रहा हूँ a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n a की पावर n माइनस n. इन दो पे फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इन दो का मेरा फोकस है. तो अब सवाल है, एक्सप्रेस एज सिंगल बेस, ठीक है? नंबर 1 2 to the power x into 2 to the power 3, 2 3 की पावर x into 3 की पावर y, 3 5 की पावर x into 5 की पावर y into 5 की पावर a, 4 5 की पावर x डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, 5 6 की पावर x डिवाइड बाय, उसने कहा 6 की पावर 3, 6 a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर, उसने कहा p. अब यहाँ पे अगर मुझे आनिया मुझे रूल्स को लगाना है, जो रूल्स मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, सही है? यहाँ पे लिखा हुआ भी मेरे सामने तुम्हारे, ये रहा. अब हानिया अगर मुझे 2 की पावर x को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होंगी? पावर क्या होंगी? हाँ जी, बेसिस सेम है, व्हेन मल्टीप्लाइंग देम पावर ऐड, तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर
x plus 3. That's a single base. हाजरा नीचे वाला 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y, इसका आंसर क्या होगा हाजरा? 3 की पावर x plus 5, because we have bases same, I can add the power up. अब x plus 5 remain x plus y, it cannot become xy. तीसरा था 5 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 5 की पावर a. तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, तो 5 की पावर x प्लस वाई प्लस a, तीनों बेसिस सेम है, आंसर ही आ गया। रईसा 5 की पावर x डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, अगर 5 की पावर x डिवाइड बाय 5 स्क्वायर होगा ईसा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा या डिवाइड होगा, मतलब माइनस होगी पावर या प्लस होंगी? जी डिवाइड है यहाँ जी रईसा। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कैसे होगी? x माइनस 2, अली यहाँ पे बेसिस सेम है बेटा और डिवाइड साइन है, तो पावर क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस। तो x माइनस 3, यहाँ पे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर p, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, a की पावर m। वेरी गुड, कॉपी नाउ, ताकि थोड़ा मुश्किल दूं। तो रूल्स मैंने स्टार्ट में लिस्ट डाउन कर दिए, रूल्स स्टार्ट में लिस्ट डाउन कर दिए, फिर मैं अब रूल्स को तोड़ के तुम्हें समझा रहा हूँ कि हाउ वी विल इम्प्लीमेंट इट, ठीक है? देन वी विल फॉरवर्ड, सो नो नीड टू रश। हाँ भाई, डन हो गया? कहा डन, हाजिर डन, ठीक है, अली डन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अ डिफिकल्ट पार्ट। अब इसमें थोड़ा मसला होता है, अगर उसने बोला एक्सप्रेस ए सिंगल बेस, उसने कहा भाई 2 to the power x इंटू 8, 2 to the power x इंटू 8। अब मुझे सिंगल बेस में करना है, पहली बात तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते कि 8 टू 16, क्योंकि इनकी इनकी बेसिस सेम नहीं है। बेसिस सेम होगी तो काम होगा, पावर भी सेम नहीं है, पावर सेम होगी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। एक की पावर x से एक की पावर 1 है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई द नॉट। सो व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट 8 एज अ पावर ऑफ 2। तो भाई 8 कितना होता है 2 की पावर, व्हाट इज 8 टू द पावर? हाँ जी, टू द पावर व्हाट इज 8, 4 और 3? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 टू गेट इन 8? जी हाँ नहीं, मुस्तहीन, फातिमा 3 to the power 3. Now I have basis same multiply to 2 की power x plus 3. Number 2 to the power 3 is 8. You should know that. I am writing few numbers जो तुम्हें याद होने चाहिए। For instance मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ 2 to the power 2 is 4, लिख लो अपने पास। 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 6 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64. Same, 3 square 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। यू शुड नो दिस फॉर द पेपर, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है? 5 की 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 ये हो गया तुम्हारा 256। आपको ये याद होने चाहिए, जल्दी से लिखो सारे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, जिसको याद है लिखने की जरूरत नहीं है। सारी कॉपी फिर मैं बताऊँ। और 2 to the power 3 8 क्यों होता है भाई, देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। जल्दी से लिखो वाली, मुस्तैन लिख लिया? अब 2 to the power x इंटू 32,
व्हाट शुड द पावर ऑफ x टू गेट 32? जी बताएगा कोई? व्हाट इज द पावर ऑफ 2 टू गेट 32? जी ऊपर लिखा हुआ भी है जी। 5 टू द पावर 5, आंसर होगा 2 की पावर x प्लस 5। 9th, Ali, watch for the 3 की power 3 की power x into 81. What is the power of 80? What should we get for the power of 3 to get 80? हाँ, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3 की पावर x प्लस 4। बिंगो। 10th, अच्छा जी 10th में उसने बोला अपना मूसा, उसने बोला बेटा 5 की पावर x, 5 की पावर x डिवाइड बाय 625, क्या होगा मूसा ये? गुड 5 की गुड। अब ये माइनस डिवाइड 5x माइनस 4। तो अपने पास हम बुक्स पे लिख लेते हैं कि 5 की पावर 3 125 होता है, तो 5 की पावर 4 625 होता है। आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। याद नहीं किया हुआ तो भाई फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कॉमन पावर्स है मैं लिखता जा रहा हूँ सामने बोर्ड पे। तो मुझे ये ना बोलना सर ये पेपर वन में आ सकता है। भाई आ सकता है यार, आपको नहीं अंदाजा बच्चे कैसे पेपर दे रहे हैं। उनको मेमोर उनको याद होता है, कितना बहुत अच्छी होती है उनको। अगर आपकी कितना अच्छी नहीं है तो ये आप मेमोराइज दें, 5 दफा करोगे याद हो जाता है वैसे ही। चल अगला देखें। 11, 11 में उसने बोला भाईजान 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 8, 8 निकलते उसको कर लेते हैं 64। सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा अली, ये 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर 6, साथ में ये होगा 2 की पावर x प्लस 9। वही सा क्लियर है यहाँ तक? हाजरा क्लियर है यहाँ तक? डन हो गया? कर मूसा ओके यहाँ तक? चले नेक्स्ट। अली कॉपीड? आर यू डन? तहा डन? फातिमा डन? परीक्षा डन बेटा? चलें अब क्या है, अब फर्स्ट करो इसी में मैं थोड़ा और जरा मुश्किल करूँ। चल एक्सप्रेस एस सिंगल बेस 8 की पावर, देखो मैं क्या करता हूँ, 8 की पावर x प्लस 2 इंटू इंटू उसने कहा 16 की पावर x प्लस 3, एक्सप्रेस एस सिंगल बेस। अब तुम्हें यहाँ पे 8 है और 16 है। अब तुम्हें सिंगल बेस में करने के लिए था इन दोनों को ढूंढना है कि दोनों किसकी पावर में होते हैं। तो लिस्ट ऊपर बनी हुई है, 8 और 16 किसकी पावर में आते हैं यार? जी 8 और 16 किसकी पावर में आते हैं? 2 की पावर। आज ने बोला 2, 8 एंड 16। तो अली आई विल रिप्लेस 8 एंड 16 बाय 2 की पावर। सो अली होगा क्या, 2 8 हो जाएगा 2 की पावर 3 x प्लस 2, 16 होगा 2 की पावर 5 x प्लस 3। हो गया। अब एक रूल लिखवाया था मैंने आखिरी में कि अगर एक पावर बाहर हो और एक पावर अंदर हो ब्रैकेट के, दोनों मल्टीप्लाई आउट हो जाते। तो यहाँ पे हाजरा ये जो 2 की पावर यहाँ पे वाले क्या होगी बेटा? ये 3 खाली x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। व्हाट विल यू डू? जी हाजरा बोथ। तो व्हाट विल द पावर 3x प्लस 6। यहाँ पे फातिमा 4 x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये तो 4x प्लस 12। अब यहाँ पे रईसा बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो पावर ऐड होगी क्या बनेगी? जी पावर ऐड की क्या बनेगी रईसा? फाइनल आंसर बताऊंगा सर, ये आंसर। हाँ जी क्या बनेगी पावर रईसा? फातिमा क्या बनेगा आंसर फाइनल? मूसा तुम बता दो, ये शर्मा रहे हैं।
ये आंसर आ गया। कॉपी कर लो यार जी, तो नॉन मुश्किल है। तो अगर मुझे सिंगल बेस पे कन्वर्ट करना है तो मुझे दोनों नंबर्स को सर्च करना पड़ेगा। ये 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5, याद रखना है। उनमें से एक नंबर में वैसी हेल्प कर देता है तो आसानी हो जाती है। आने खान लिख लिया? रईसा लिख लिया? मुस्ताहीन डन? ओके 13। अब मुस्ताहीन हो ही रहा है, उसने बोला बॉस 27 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 81 की पावर 2x प्लस 2x माइनस कर लेते हैं 6। चलो 27 और 81 रईसा किसकी पावर में जाएंगे, 2 या 3? इफ यू वांट टू एक्सप्रेस देम एज अ सिंगल बेस, व्हाट शुड आई कन्वर्ट 27 एंड 81 विद? जी रईसा, जी परीसा, एक मिनट, जी मूसा बोले 2। 27 2 से 81 कैसे होता है? 27 3 तो होता है ना। 3, हाँ 3 3 3 3 3 का 3 की स्टोरी है। तो आपने क्या किया, 3 की पावर 3 x प्लस 3, 3 टू द पावर 4 2x माइनस 6, 3 की पावर 3x, ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 9 इंटू 3 की पावर 8x माइनस 24। नाउ आई हैव बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई साइन आउट है, तो मैं क्या करूँगा, पावर ऐड कर दूँगा। जब पावर ऐड होगा तो 3x प्लस 8x कितना होता है, 11x। 9 माइनस 24 कितना होता है, हाँ भाई 9 माइनस 24 कितना होगा, -15। ऐसे ही है, यही आ रहा है मुस्ताइन, यू देयर और ट्रैवलिंग? चलो मूसा डन, कहा हाजरा, चलो अली जल्दी, अली जल्दी से करो। इसको डन, द लेट रईसा डन। चलें, रईसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही आप। यू शुड बेटर, यू बेटर रिप्लाई नाउ। ठीक है 14, 5 की पावर, चलो अब देखते हैं, 25 टू द पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, तुम डिवाइड कर लेना, अपॉन कर लेना, अपॉन 6, 25 नहीं लगता इसको, 125, सॉरी है 125, माजरत है। 625 की पावर x माइनस 2। चलो भाई, अब मैं किस में कन्वर्ट करूँ दोनों को यार, हाजरा 25 625, हाँ ये किस में कन्वर्ट करूँ? व्हाट इज द पावर 125 625, किसकी बेस में आ सकते हैं दोनों, बताएं दोनों। 5, 5 की पावर ही कितना होगा बॉस, इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह करके, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 x माइनस 2। चलो ऊपर सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आंसर अली, 5 की पावर 6x और ये 3 इससे ही मल्टीप्लाई होगा बेटा 9, और नीचे आएगा 5 इंटू 4x माइनस 8। हाँ तो -8 हो गया, राइट। व्हेन वी हैव, अब ये जो साइन है अली बेटा, ये साइन व्हाट डज इट मीन, इट मीन डिवाइड। So when we are dividing and we have the same base, so what should we do with powers? Should we subtract or add? Okay, so I wrote it like this: 6x plus 9 minus
4x minus 8. Did I write correctly? ठीक है, किसी को मसला मेरी प्रेजेंटेशन में? हाजरा, am I right over here? What's the issue now? What's the issue, Hazel? Yeah, we can solve x together. What the way I wrote the over here, is there any issue with writing this way? I'm just asking. Like I can simplify them, but before simplifying, is there any issue with this? जी मूसा, कोई issue? No issue? Okay. No issue हानिया, परीसा no issue, मूसा कोई issue, दाऊद कोई issue? मेरे सामने इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इशू देखो क्या है, इशू ये है, यहाँ पे लगाना है। अब अगर तुम ये लिखा हुआ है ना, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग कर तुम 6x माइनस 4 है 2x, 9 माइनस 8 करोगे 1, जबकि आंसर गलत है। आपको जब भी माइनस साइन आएगा यहाँ ब्रैकेट लगाना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है, यही तो मसला है। अब ये हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी वहां पे। तो 6x माइनस 4x इज 2x, एंड हाजरा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9 प्लस 8 17। दैट्स द इशू, बहुत बड़ा मैटर है। सो व्हेनेवर देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड, यू शुड पुट अ ब्रैकेट, ताकि दूसरा टर्म मल्टीप्लाई तो हो जाए, फिर बाद में खुलेगी बात। ओके हो गया? हाँ जी, अब डन है। आजा क्लियर है, क्लैरिटी आ गई कि व्हाट इज माय मिस्टेक। चलो, तो जब भी इस तरह करोगे, इस तरह करना। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, क्वेश्चन 15, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, then we move on to next। अब अलीस ने बोला 216 to the power x plus 1 upon 36 की पावर 2x minus 4, ठीक है। सो हाउ कैन आई कन्वर्ट 216 एंड 36? देखो कभी क्या ना, पेपर में सवाल है, आंसर है 36, हमें पता है 6 की पावर में ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए 216 भी 6 की पावर में ही होगा। तुम्हें पता होना चाहिए 6 की पावर 2 इज 36, तुम लिख लो अपने पास 6 की पावर 3 इज 216, राइट इज समवेयर ओवर देयर, कहीं बुक्स पे लिख लो ये। अब फातना करना ये है, ये रहेगा 6 की पावर 3 x प्लस 1, मुस्तैन ये रहेगा 6 स्क्वायर 2x माइनस 4, ये रहेगा 6 की पावर 3x प्लस 3, और ये होगा 6 की पावर 4x माइनस 8। चलें, अब रईसा यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी या प्लस होगा, क्या होगा? रईसा एंड परीसा, व्हाट विल यू डू ओवर हियर? सब्ट्रैक्ट होंगी पावर या प्लस होंगी? बताएं, हुक्म करें, हुक्म के ताबेदार हम। माइनस, अब जब माइनस लिख रहा हूं तो 6 की पावर 3x प्लस 3 गुड माइनस 4x माइनस 8, सही लिखा है या कोई इशू है? ब्रैकेट डाल देंगे। हाँ बोलो, कोई बात आएगी। 6 3x माइनस 4x माइनस x जी, हाँ ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, ये ब्रैकेट लगाया तो होगा ना, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है सबको? हाँ जी, ओके हो गया सबको? अब तुम आगे बढ़ो। गुड, मैं आगे बढ़ूँ, आगे दो रूल और आगे जो दो रूल है उसको समझना है, ठीक है। तार डन हो गया? चल भाई अगला। हाँ। हम्म,
हम्म, ये क्लास के बाद बात कर लूँ, क्लास के बाद बात कर लूँ इस बारे में, ठीक है। आई एम रिकॉर्डिंग इट, सही है, यू कैन लीव, थैंक यू, चले, वालेकुम अस्सलाम, टेक केयर बेटा। हाँ, चलो भाई, अब क्या है बच्चों, जब ये हो गया, ये सब हो गया आपको, तो आपको करना ये है, अगले दो रूल पे आते हैं। अगले रूल थोड़ा ट्रिकी है, वो ये कहते हैं, द नेक्स्ट रूल, ए की पावर एम मतलब है बी टू द पावर एम, ये रहेगा ए बी की पावर एम, और दूसरा रूल था इसका था ए टू द पावर एम डिवाइड बी टू द पावर एम, ए अपॉन बी टू द पावर एम, ठीक है ये। अब बच्चों होगा क्या, अगर मेरे पास इस रूल को अप्लाई करना है, टू टू पावर एक्स इंटू थ्री टू पावर एक्स, क्या इसकी बेसिस सेम है, क्या इसकी बेसिस सेम है, नहीं, बेसिस सेम नहीं है, बेसिस जब सेम नहीं है, क्या अब सवाल होना चाहिए आज जरा, आर द पावर सेम, यस, एज द पावर्स आर सेम आई कैन मल्टीप्लाई दिस बेसिस, तो आंसर होगा 6 की पावर एक्स। नंबर टू, मैंने कहा भाई, मैंने कहा हाजरा बेटा टू, 4 की पावर एक्स इंटू 7 की पावर एक्स, नाउ आई कैन सी द bases are not same, but I checked the powers are same. As the power are same, I can multiply them out. So answer हो गया 28 पावर x। मुस्तहिल मैंने कहा 5 की पावर x plus 2 into 3 की power x plus 2। I checked they are bases same? No. I checked are the power same? Yes. When the powers are same, I can multiply the bases together। तो ये आएगा 15 की पावर x plus 2। फोर्थ, हाजरा उसने कहा बेटा 20 की पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर x, क्या इनकी बेसिस सेम है हाजरा, नहीं, I checked are the power same, yes, I can merge them together, I can write 20 upon 2 to the power x, 2 ones are 2 tens are, the answer is 10 to the power x, 10 to the power x। फातिमा क्लियर है? फिफ्थ, 30 to the power x डिवाइड बाय 5 की पावर x। अब यहाँ पे देख किया मैंने, बेसिस सेम है परीसा, नहीं, आर द पावर सेम, यस, व्हाट विल आई डू, आई विल टेक 30 upon 5 right that way, 5 ones are 5 6 are 6 to the power of x 6। उसने कहा अपना उसने कहा हाँ ये कर लिया, उसने कहा 20 to the power y divided by 100 to the power y, बेसिस सेम नहीं है बट पावर सेम है, आई रोट 20 अपॉन 100 to the power y, 20 ones are 25 are, आंसर आया 1 अपॉन 5 की पावर y। अच्छा अब मसला ये है, वन की कोई भी पावर हो, वन की कोई भी पावर हो मुस्तकिल वन होता है, सो इफ आई राइट 1 टू द पावर y इज ऑलवेज 1, 5 टू द पावर y, ये मेरा फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द आंसर, मतलब वन की पावर कुछ भी हो वन होता है, तो y ना, वन की पावर y कुछ भी हो, y कुछ भी हो, y आंसर वन होगा। अच्छा वन की पावर टू क्या होता है, थोड़े, वन की पावर थ्री क्या होगा, ओए, तो वन की पावर y क्या होगा, हमें वन, हमें भाई भाई कुछ भी हो आंसर वन ही आएगा ना। 5 की पावर y है, 5 की पावर y, 5 की पावर y, ठीक है ना, ये लिखा है, ओके, यहाँ तक ओके हो गया। चलें अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं,
जल्दी से लिख लें रूल्स। ये मैं रूल समझाएं, पहले मैंने रूल बता दिए, अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ताकि जब हम लोग सवाल करेंगे तो ये सारे रूल्स याद होने चाहिए ना। रूल्स नहीं याद तो कैसे होगा। रूल्स की एप्लीकेशन बहुत मस्त है भाई। चल भाई अगले पे आते हैं। डन हो गया आज रख। चलो अब क्या सीन है। सेवेंथ। अब उसने किया, उसने की बदतमीजी, उसने क्या भाई, ये 25 की बार एक्स इंटू एक मिनट, 25 की पावर नहीं, इसको करते हैं 9 की पावर एक्स इंटू उसने कहा 3 की पावर 7 की पावर 2x। अब वो कह रहा है इसको ना सेम बेस कर, एक्सप्रेस एज सिंगल बेस, सही, एक्सप्रेस एज सिंगल बेस। चल रही, अब यहाँ फंस गए। अब फातिमा हो क्या रहा है इसमें, बेसिस तो सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, एक एक्स है और एक 2x है। अब मैं करूंगा क्या, मेरे देखो मैं क्या करूँ। इसको देख रहे हो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करूँ। फॉर्मूला रीराइट, देखो मैं कर क्या, बहुत स्मार्ट वर्किंग है। 9 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, वैसे इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसको लिखा 7 स्क्वायर और x, लिख सकता हूँ ऐसा, 2 अंदर ले गया, x बाहर चला गया, लिख सकता हूँ, लिख सकता, लिख दिया। वो साइन देखा क्या किया, 2x को मैंने रिवर्स कर दिया, 7 की पावर 2 और बाहर x रखा, लिख दिया। 7 की पावर 2 क्या होता है, बोली 7 की पावर 2 जी, बोली 7 की पावर 2 मुस्तैन 49 की पावर x हो गई। अब बेसिस अभी भी सेम नहीं हुई, क्या पावर सेम है, क्या पावर सेम है बॉस, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सो 9 9 जा 940 जो होता है 360, 9 9 जो होता है 81, इसको प्लस कर लो तो ये रहेगा 441 की पावर x। आ जरा क्लियर है कि मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको बॉस 7 स्क्वायर को अंदर ले गया, x को बाहर रखा, पावर सेम, तो पावर सेम हो गई तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी से कॉपी करें। कहाँ क्लियर है, हाँ यहाँ क्लियर है यार, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, मतलब मैं अब मैं देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। अगर ये लिखा हुआ है ना 3 की पावर 5x, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 5x। अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 2x, आई कैन राइट दिस 2 स्क्वायर और x। अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 2x प्लस 4, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, अंदर ले गया, ब्रैकेट x प्लस 2, 2 कॉमन निकाल लिया। समझ आ रही है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 4x, आई कैन राइट दिस 5 की पावर 4 और x। कहा डन। चलें अब देखें एक और, उसने बोला 8, 8, 8 में बोला 2 टू द पावर x इंटू 343, लिखा 5 की पावर 3x, सही है, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मुस्ताइन क्या हुआ, 2 की पावर x से 5 की पावर 3x है, बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा 2 की पावर x, 5 की पावर 3 x, 2 की पावर x, 5 की पावर 3 हो गया 125 की पावर x। अब दोनों की पावर सेम है, आज आई कैन मल्टीप्लाई 2 इंटू 125, तो आंसर कितना आएगा 250 की पावर x।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कहाँ क्लियर है? कॉपी करो लिखा क्या? मर्जी है, ना लगाओ तो मसला नहीं। पढ़ लिया हमने। चलिए अगला, 3 to the power 3x into 2 to the power 5x divided by 7 to the power 3x। नहीं है, तो यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं, तो मैंने इसको स्प्लिट किया, इनको लिखा 3 to the power 3x, इसको देखो 2 to the power 5x डिवाइड किया 7 to the power 3। अब 3 to the power 3 हो गया 27, 2 to the power 5 हो गया 32x डिवाइड 7 to the power 3 होता है 343x। अब इसको मैंने अरेंज कर लिया, सब में पावर x है, सब में पावर x है, मैंने उसको इकट्ठा किया इस तरह 27 इंटू 32। इतना बड़ा सवाल पेपर में आएगा नहीं, तो भी लिखवा दें, और ये हो गया पावर x 27 इंटू 32 डिवाइड 343, ये आ रहा है 864 अपॉन 343 पावर। क्लियर है? हाँ जी, क्यों भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड साथ हो सकते हैं। अब बात एक ही है यार, दो क्लास यहाँ तक क्लियर है? आज क्लियर है? चले भाई, ये तो हो गए शुरू के तुम्हारे रूल्स, मैंने था ना ये करा दिया, और ये तो मैंने बीच में कराता रहा, ये वाला रूल तो मैं कराते ही रहा साथ साथ, इसके रूल हमने कराए पूरे 5 रूल तो थे। चल अगला रूल, द सिक्स्थ रूल वी आर टॉकिंग अबाउट, एनीथिंग टू द पावर, द सिक्स्थ रूल, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1। किसी भी पावर 0 होगी ना परीसा, इसका आंसर क्या होगा? 1। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखूँ 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 1, 3a की पावर 0 1, 3a की पावर 0 3, सही है। 5 की पावर a की, अब यहाँ लिखो 5/3 की पावर 0 1। बात समझ आ रही है? जल्दी से लिखो। हम्म, अभी पहले कर लें, क्लास में चल लें, तो फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है? क्लास डन, अलग से भेज देना। 2 + 0 1 होगा ना। अब सेवेंथ, सेवन में उसने बोला, अच्छा यहाँ पे किसी ने पूछा नहीं ये जो है 3 कैसे आ गया, यहाँ पे 0 पावर, वो a की पावर 0 है, यहाँ a की पावर 0 है तो वो 1 होगा, और 3 इंटू 1 3 होगा। सबको क्लियर है? इसलिए 3 है इसका आंसर। सेवेंथ, anything to the power minus n, anything to the power negative will always be 1/a to the power n, 1/a
ए टू द पावर ऑफ एन। मतलब पावर जब तक पॉजिटिव नहीं होगी ना तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना जरूरी है। पावर पॉजिटिव होगी तो काम बनेगा, पावर पॉजिटिव होगी तो काम बनेगा। सब होता है क्या, अगर मैं लिखूं टू टू द पावर -3, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, 1/2 इट इज 1/8। अगर लिखा है 3 टू द पावर -2, इसको मैं लिखूंगा 1/3², जाएगा 1/9, 2 3 0 9। 2 to the power -4, इसका मतलब 1/2 to the power 4, which is 1/16। 2 into 2 into 2 is 16। अगर उसने लिखा हुआ है 1/3 की पावर -3, अब डिनोमिनेटर माइनस है, इसको पढ़ लिया 27। अगर ये 3/5 की पावर -2, इसको फ्लिप करो 5/3 की स्क्वायर 25/9, 25/9। अगर मैं लिखता हूँ 7/8 की पावर -3, तो ये आएगा 8/7 की पावर 3। अब ये पावर 3 तीनों के साथ है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इज 512, और 7 की पावर 3 इज 343। जल्दी से कॉपी करो यार ये। सो व्हेन द पावर्स आर नेगेटिव यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव, देन यू हैव टू इवैल्यूएट। अब ये नहीं लिख के आ गए पेपर में, तो भरोसा तो आपकी मैथ्स का कुछ भी नहीं है। 3 की पावर 2 बहुत ज्यादा सोचा -9, अभी नहीं है -9, कैन नॉट बी -9। इसको पहले पॉजिटिव करोगे फिर बात बनेगी। हाजरा क्लियर है, फातिमा क्लियर है, परीक्षा डन, कहा डन? अभी दूंगा तो बताऊंगा, अभी तो पढ़ाई तो हो जाए पहले। हाँ भेज दो मुझे, व्हाट्सएप कर दो भाई। अभी क्लास में यार लेक्चर जो है ना, लेक्चर के बीच में ये फजूल वो बात में किया करो चीजें, ओके? क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बीच में तुम्हारे एक सवाल आ गया, लिख लिया सबने? राइट साइड डन। सेवेंथ केस, 8 सॉरी 8 केस क्या है भैया वो देख लो। 8 केस क्या कहता है, 8 केस कहता है ए की पावर 1/n। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, 1/n का मतलब क्या होता है, 1/n, 1/n इसका मतलब है a with root n, a with root n। अच्छा, सो अगर अब मेरी बात सुनना सारे, अगर मैं लिखता हूँ 4 की पावर हाफ, हाफ इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा फातिमा, 2। 8 द पावर 1/3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8, इसका आंसर क्या होगा 2। मतलब क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई तो आंसर 8 आए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। क्या मैंने लिखा 64 की पावर 1/6, √6 of 64, मतलब ये है हाजरा कि यार ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई आउट हो तो 64 आए। तो आई विल स्टार्ट ऑलवेज माय नंबर विद 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32 and 2 to the power 6 is 64। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 अगेन। अगर वो कहता है 125 का √1/3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 125। हाजरा इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 125? 5। अब अगर मैंने लिखा 625 √1/4, अब इसका आंसर क्या होगा 625 √4। ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने से 4 दफा मल्टीप्लाई हो तो आंसर 625 है जी? क्या होगा मुझसे इसका आंसर? 3 4 1
क्या होगा इसका आंसर? √4। मूसा, दाऊद, रईसा, क्या होगा? 4? 4 या 5? 5। यहाँ तक क्लियर है? अब उसने बोला 243 की पावर 1/5, इसका आंसर क्या होगा? √5 ऑफ 243। इसका आंसर क्या आ रहा है? ऐसा कौन सा नंबर जब जब 5 का मल्टीप्लाई अपने आप से आंसर 243 हो? जी जी, ताहा, परीसा, मूसा, क्या आंसर है? 2 है, 3 है? 3? बगैर कैलकुलेटर बताया 3। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन 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 हो गया। सबको यहाँ तक क्लियर है? मुस्तकीन डन? मूसा डन? ठीक है। चल अब क्या है? अब मूसा भाई ये 1/n जो है ना, ये तो फिर आसान है। अब होता है क्या है, नवा रूल जो है ना, वो थोड़ा टेक्निकल है। हाजिर डन हो गया, सबने लिख लिया, परीक्षा लिख लिया सब? ताकि फिफ्थ रूल जो नवा नाइन्थ रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नाइन्थ रूल कहता है a⁻m/n। इसको मैं लिखूंगा इस तरह करके, देखो मैं लिख के, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस वे, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ इस तरह। सही है, एक मेथड 1 है और एक मेथड 2 है। अब चेक करते हैं विच वन इज द इजिएस्ट वन। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कहा 64 की पावर 2/3 को इवेल्यूएट कराता है पेपर 1 में, आपने क्या करना है, पहले इसके 3 को, ये 1/3 है, 1/3 इंटू 2 है, इसको तुम लिखो 64 1/3 2। यार इसका आंसर बताओगे ब्रैकेट में क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट 64 क्या होगा? हाँ तभी तो 64 की पावर 16 का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या हो रहा है? ऐसा 4, ये 4, 15, 16, हाँ 16। तो अब ये 4 हो गया, अब 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। ऐसे ही है। अच्छा अब मैंने क्या किया, पहले फातिमा, अच्छा अब इसको वाइस वर्सा करो, सुनो मेरी बात। ये मैंने किया, पहले 1/3 अंदर ले गया, 64 क्यूब रूट निकाला विच इज 4, 4 का स्क्वायर क्या है? 2। अब आ जाए इसको वाइस इस रूल से करते हैं, मैं लिखता 64 का स्क्वायर और 1/3। क्या 64 का स्क्वायर टाइम पे निकलेगा पेपर में? आज इज इट डिफिकल्ट और नॉट? मतलब टाइम ही नहीं। और फिर जब निकाल लिया गलती से, जो क्या आता है 64 इंटू 64, जो क्या आता है 4096, तो इसका क्यूब रूट निकालूंगा, टाइम लगेगा। तो रूल नंबर 1 जो है वो ज़्यादा आइडियल है कंपेयर टू रूल नंबर 2। पहले इस नंबर को रिड्यूस करो, देन इंक्रीज करो। क्लियर है आपको? मैंने वापस बताया था, मैंने बोला बेटा कि अगर मैं नंबर 1 को रिवाइज करा, मैंने कहा 625 की पावर 3/4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको लिखूंगा 625 पावर 1/4 और बाहर 3, मतलब √4 ऑफ 625 की पावर 3। √4 ऑफ 625 क्या होता है? 5 की पावर 3 क्या होता है? 120। ये कर लो। अब इसको इंक्रीज करके मैं लेके जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, टाइम लगेगा। आज तक क्लियर है? खानिया खान क्लियर है कि बेटा पहले उसको रूट को लेके जाओ अंदर, जो रूट हो जाए
फिर जाके पावर 3 कर दो उसको। ओके यहाँ तक? अगला उसने कहा -3/2। हाँ भाई, क्या होगा इसका? अब 1 2 2 1 है और पावर नेगेटिव है। पावर क्या है उसका, इसकी नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है तो पहले मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा हाजरा। 100/1 to 1 पावर होगी 3/2। अब इसका स्क्वायर रूट अंदर लेके जाऊंगा। अच्छा, यहाँ 2 लिखू ना लिखू डजेंट मैटर, स्क्वायर रूट है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 100 का स्क्वायर रूट 10। 121 का क्या होगा? 11। अब बाहर लगी पावर 3। अब 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 11 क्यूब, मतलब है 11 × 11 121 × 11। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 1331। 1331 ये आंसर है। 1331। फातिमा क्लियर? हाजरा क्लियर? ये स्क्वायर रूट कर दिया ना इसको। इसको मैंने ये लिखा, इसको स्प्लिट कर दिया, अपॉन 2 होगा। अब ये इसका मतलब 3/2 है ना। 3/2 का मतलब क्या है? ये होगा ना। ये हुआ ना। तो स्क्वायर रूट एक रुको, हाँ तो ये स्क्वायर रूट हो गया एक रुको एक, हाँ अब स्क्वायर रूट हो गया ये, तो बस कर दिया। अभी यहाँ भी तो कर रहा था। हाँ बोलो। हाँ हाँ ले लो यार, समझा थोड़ी है, हर बच्चे की मैथ तेज थोड़ी है ना। ये मसला है ना यार, लोगों को 121 को 100 कन्वर्ट करने में मसला होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करा, उसका करा, लंबी करके करा रहा हूं। ये तुम कर लेना, बस पावर को देख लेना। हानिया क्लियर है? परीक्षा डन? अब अगर मैं कहता हूँ ताहा, उसने बोला उस्ताद 64/81, 81 कर लेते, 81/10,000 -3/4। अब ये -3/4 है 81 10,000। तो पहले क्या करूँगा मुस्ताइन, इसको मैं फ्लिप फ्लिप मारूंगा। जब फ्लिप हुआ तो पावर हो गई पॉजिटिव। जब पावर पॉजिटिव हो गई मुस्ताइन, ये √4 चला गया 10,000/81 और पावर 3। अब ऊपर रईसा 10,000 का √4 क्या होगा? व्हाट इज 10,000 √4? ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई 10,000 4 दफा अपने आप से? 10 होगा। पहले का आंसर क्या होगा? 10। ठीक है रईसा, नीचे क्या आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जब तुमने 4 दफा मतलब 81 है? जी, व्हाट इज √4 ऑफ 81? जी 3। अब बाहर 3 लगा हुआ है, तो 10 to the power 3 इज 1000 एंड 3 to the power 3 इज 27। वो क्लियर है? सबको क्लियर है? इसको मैं अगर सिंपल में लिखूंगा
तो 37 होल 1/27। यहां तक ओके है? डन है? रईसा डन है। तो ये जो अभी मैं कल भी इसको और सवाल कराऊंगा इस पे इंशाल्लाह, जो कल 12:30 क्लास होगी उसमें और ज़रा क्लैरिटी आएगी। इसमें एक दो चीज़ और रहती हैं।